Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know that yesterday we have completed our chapter 7 with revision. So let us move to our next chapter. As you all know, this is our last chapter. After that your English first course will be completed. So we will move to next we will move to our English second, that means English grammar. So today we are going to see next chapter 8, Thomas Alva Edison. As you know, uh, in the era of science, the name of Edison is very famous. Everybody knows the name of Edison. You all know what did he invent, that is very famous, and this is very useful for our life. He had done a invention of very useful thing, and that we use in our daily life. So I think you all know about that what he had invented. So yes, his famous invention was one and most famous invention was bulb. As you all know, bulb gives us light, so it is very essential for our lives. So now we will start our chapter Thomas Alva Edison, and this chapter is written by Mani Mehra. Mani Mehra is the writer of the chapter. Thomas Alva Edison. First, before starting the chapter, we will start. So first we see here is given match the inventors with their inventions. So first is given Galileo Galilei. As you know, Galileo Galilei has invented telescope. Galileo Galilei invented telescope, and Carl Benz invented car, and Alexander Graham Bell, who was very famous, he had invented telephone. So match this. Number 1, Galileo Galilei, telescope. Carl Benz, 2, car. Alexander Graham Bell. Number 3, telephone. So everybody match this in your book. Now, as you can see, this is the picture of Edison when he was a child. Let us start our chapter and see how many invention he has done, and how was his life in the starting, and how many effort he has done in his life to achieve his goals, to make inventions. Actually, he was very well known scientist. Young Thomas Alva Edison was naturally curious. Curious, that means full of curiosity, जो जिसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है. The child that asks so many questions are known as curious. So जो young Thomas Alva Edison थे, his full name was, in short we can say him Edison, but his full name was Thomas Alva Edison. Young Thomas Alva Edison was naturally curious. Thomas Alva Edison जो थे वो naturally curious थे. He was always asking questions and liked to experiment. और वो जो थे वो हमेशा क्वेश्चंस पूछा करते थे, और उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था. Once when he was very young, जब वो बहुत छोटे थे, he even sat on some goose eggs to see if they would hatch. वो एक बार क्या हुआ था कि गूस जो होते हैं उनके ऊपर बैठ गए थे ये देखने के लिए कि उससे अंडे निकलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो मतलब इवन सेट ऑन सम गूज एग, गूस के एग पे बैठ गए थे. क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो हैच होंगे कि नहीं. दैट मीन्स उनसे मतलब जो बेबी होते हैं उनके चूजे वो निकलेंगे कि नहीं. विल गॉसलिंग कम आउट, मतलब गॉसलिंग का मीनिंग क्या होता है, ये जो चूजे का बच्चा होता है, ठीक है. हाँ, अंडे से निकलेगा कि नहीं चूजे का बच्चा, तो ये देखने के लिए, क्योंकि मुर्गी बैठ के ही उनको सेती, हैच मीन्स होता है सेना, तो वो सेती है तभी उससे क्या निकलता है अंडा, अंडे से बच्चा निकलता है चूजा. तो वही देखने के लिए वो अंडे पर ही बैठ गए थे कि देखते हैं इससे चूजा निकलता है कि नहीं. एज यंग बॉय थॉमस हैड ट्रबल सिटिंग स्टिल इन क्लास. तो जब वो यंग थे, मतलब बच्चे ही थे, तो क्या करते थे
थॉमस हैड ट्रबल, तो उन्हें क्लास में बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो सीधे बैठते नहीं थे. सो हिज मदर टुक हिम आउट ऑफ स्कूल एंड टॉट थॉमस हरसेल्फ एट होम. तो उनकी मदर जो थी शी वॉज वेरी वरीड अबाउट इट, ना वो पढ़ते थे ना पढ़ने देते थे. तो एक्चुअली वॉज वेरी क्यूरियस, उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होता था हर टाइम. तो उनकी माँ क्या करी थी, उनको अपने घर लेवा लाई थी. मतलब ये नहीं कि वो अब उससे स्कूल भेजना बंद कर दिया और घर ले और घर पर ही उन्हें पढ़ाया. ही वॉज अ फास्ट लर्नर, वो बहुत फास्ट लर्नर थे, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती थी. हु लव्ड लुकिंग फॉर आंसर्स इन बुक, और जिन्हें आंसर्स देखना बुक में बहुत पसंद था. व्हेन थॉमस वॉज 12, जब थॉमस 12 ईयर्स के थे, ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब, उन्होंने अपनी पहली जॉब. सोचिए इन द एज ऑफ 12 एक जो चाइल्ड होता है उसमें इतनी भी सिंसियरिटी नहीं होती है कि वो कुछ काम एक्स्ट्रा वर्क कर सके, है ना. बस उसका क्या काम होता है, खाना पीना खेलना पढ़ना. और उस टाइम इन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर दी थी. ठीक है. व्हेन थॉमस वॉज 12 ईयर्स ओल्ड ओनली, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे. मतलब उस टाइम क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, फूड खाना और कैंडी. ऑन द ट्रेन दैट ट्रेवल्ड बिटवीन पोर्ट हरॉन एंड डेट्रॉयट, जो ट्रेन पोर्ट हुरन से लेकर के हरॉन से लेकर के डेट्रॉयट तक जाती थी, उस ट्रेन में ये चीज़ों को सेल करते थे. दिस sold on the train these things. By the time he was 15 was also selling his own weekly paper. और जब ये 15 ईयर्स के थे तो इन्होंने अपना खुद का वीकली पेपर बेचना स्टार्ट किया, जो कि दैट ही प्रिंटेड हिमसेल्फ, जो कि इन्होंने खुद प्रिंटेड किया था, जो इन्होंने खुद प्रिंट किया था, वो पेपर इन्होंने बेचना स्टार्ट किया जो इनका खुद का प्रिंट किया हुआ था. इट वॉज फुल ऑफ न्यूज़, और ये न्यूज़ से फुल था, इसमें बहुत सारी न्यूज़ें होती थी. अबाउट द पीपल हु ट्रेवल्ड और वर्कड ऑन द ट्रेन, किसके बारे में होती है, एक्चुअली ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन टू सेल देयर थिंग्स. और जो लोग डेली सेलिंग करते हैं, उस पर आते जाते रहते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज हो जाती ट्रेन की. तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड लिखा था कि जो लोग यात्रा करते हैं ट्रेन से या जो लोग काम करते हैं ट्रेन से, हर वीकली न्यूज़पेपर वॉज फिल्ड विद द पीपल हु ट्रेवल्ड और वर्कड ऑन द ट्रेन. इन 1868 व्हेन ही वॉज 21, अब 1868 में जब वो 21 ईयर्स के थे, एडिशन इन्वेंटेड एन ऑटोमेटिक वोट काउंटर. तो इन्होंने ऑटोमेटिक वोट काउंटर, मतलब जो वोट काउंट करने वाली मशीन होती है ऑटोमेटिक, वो बनाई. फॉर विच ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट पेटेंट, और जिसके लिए उन्हें फर्स्ट पेटेंट भी मिला. पेटेंट क्या होता है, अ पेटेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट. एक जो पेटेंट होता है वो इशू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. गिव्स एन इन्वेंटर, जो कि एक इन्वेंटर को देता है द सोल राइट टू मेक, सोल राइट देता है बनाने का, एंड सेल और बेचने का. हिज और हर आइडिया, जो कि अपने आइडिया को बना के बेच सके. कॉपीराइट देता है ना. पेटेंट वो होता है कि आपने जो चीज़ बनाई है उसको आप बना भी सकते हो और बेच भी सकते हो. ऐसे आप किसी भी चीज़ की सेल इस तरह से नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पेटेंट करवानी पड़ती हैं चीज़ें. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से क्या हुआ, द वोट काउंटर टर्न आउट टू बी अ फेल्योर बिकॉज नो वन वॉन्टेड इट. तो लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, ये इनका जो इन्वेंशन था वो किसी काम का नहीं निकला, मतलब कुछ इससे हुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. एडिशन वोट दैट, एडिशन ने शपथ ली. फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से, उस टाइम से शपथ ली. ही वुड इन्वेंट ओनली थिंग्स दैट पीपल वांटेड, कि वो आपसे वही चीज़ें बनाएगा जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है. व्हेन ही वॉज अबाउट 30, और जब वो 30 साल का था, एडिशन इस्टेब्लिश्ड अ लेबोरेटरी, एडिशन ने एक लेबोरेटरी बनाई इन मेनलो पार्क में, अ स्मॉल टाउन इन न्यू जर्सी. और जो वो मेनलो पार्क जो था एक स्मॉल टाउन था, कहाँ, न्यू जर्सी में. ठीक है. So Edison established a laboratory in Menlo Park, and that was situated in New Jersey, a small town in New Jersey. New Jersey का small town था ये. It was here that he invented the tin foil phonograph and the electric light bulb. और यही वो जगह थी जहाँ पर इन्होंने tin foil फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया था, और इन्होंने लाइट बल्ब इनका सबसे बड़ा इन्वेंशन बल्ब ही था. सोच लीजिए उस टाइम लोग कैसे, दिया सिलाई जो होती थी
उससे काम चलाते थे। दिया बहुत पहले चलती थी। आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, यू हैव नॉट सीन, आपने नहीं देखी होगी, लोग लैम्प का यूज़ करते थे, दिया का यूज़ करते थे और कैंडल यूज़ करते थे, बट एट द टाइम देयर वाज नो बल्ब। समझ लीजिए रोशनी थी ही नहीं। बहुत पहले इन द एरा ऑफ किंग एंड क्वीन, जो राजा महाराजा महारानियों का वो चलता था, तब लोग मशाल से उजाला करते थे, पूरे महलों में मशाल ही जला करती थी। ये पहले थे जिन्होंने सोचिए बल्ब इन्वेंट किया, और जब से लोग जानने लगे कि रोशनी इससे आती है, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ होती है, तो सोचिए। और वही बल्ब आज कितना यूज़फुल है। अब तो CFL है और भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करने लगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। सोचिए वो कितने बड़े इन्वेंटर थे। सो इन्होंने वहीं पे इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। एडिशन वॉज ग्रांटेड ओवर 1000 US पेटेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ। और एडिशन ने समझ लीजिए हज़ारों, 1000 से भी ज़्यादा, हज़ारों से भी ज़्यादा US पेटेंट अपनी पूरी लाइफ में, हज़ारों से भी ज़्यादा चीज़ें पेटेंट कराई। पेटेंट मीन्स उतना इन्वेंशन इन्होंने किया और उन चीज़ों को अपने नाम से पेटेंट कराया। एज ही बिकेम इंक्रीजिंगली फेमस ही वॉज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। और जैसे जैसे ये फेमस होते गए, एज सुन एज ही वॉज फेमस ही वॉज कॉल्ड, इन्हें कहा क्या जाने लगा, मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने, बिकॉज हिज इन्वेंशन ऑफ लाइट वॉज फैबुलस। ओके, जो इनका इन्वेंशन था वो लाइट का, वो फैबुलस था, मतलब कोई उसकी पहुंच ही नहीं थी। एडिशन फेल्ट दैट ही वॉज नॉट अ विजार्ड, लेकिन एडिशन को क्या महसूस हुआ कि वो कोई जादूगर नहीं है। एंड हिज सक्सेस वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, और जो उनकी सक्सेस है वो उनका हार्ड वर्क जो वो करते हैं उसका रिजल्ट है। जीनियस इज़ ही फेमसली सर, और वो बहुत ही, ये इनका कोट जो है बहुत फेमस हुआ था। वो क्या कहते हैं, जीनियस इन 1% इंस्पिरेशन। जो इंस्पिरेशन से होते हैं वो सिर्फ वो जीनियस जो होते हैं वो खाली 1% इंस्पिरेशन से होते हैं, लेकिन 99% जीनियस जो होते हैं परस्पिरेशन यानी कि पसीना बहा करके होते हैं। कि कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर लेता है तो बाय लक नहीं कर लेता है, बाय इंस्पिरेशन ही कि किसी ने आपको बहुत इंस्पायर किया तो आप करने लगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि कैसे करता है, बहुत पसीना बहा के करता है। ठीक है, हाँ, जब बहुत हार्ड वर्क करता है, परस्पिरेशन मीन्स हार्ड वर्क करता है, जब पसीना अपना बहाता है तभी जा कर के कोई इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर सकता है, अदरवाइज़ ये कोई खेल नहीं है। सो as you know that he was very famous inventor, and his famous invention was light bulb, and he was also known as the wizard of the Menlo Park after he has done more than 1000 inventions during his life. So he became the wizard of the Menlo Park. Okay, so as you all have listened and understood about the Thomas Alva Edison, so and this chapter is written by the Mani Mehra. So tomorrow we will start our book exercise, and that is enough for the today. Thank you for watching my video. Thank you and have a nice day.